Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all chemistry online class chapter 1 stoichiometry. Today is the fourth lecture. In today's lecture we will study about the limiting reactant and excess reactant. First of all, what is limiting reactant? The reactant that produce the least number of moles of product is called the limiting reactant. Or we can say that the reactant which is consumed completely and due to which the reaction is stopped automatically. It is actually the stoichiometric amount of the reactant, means it is actually the calculated amount of the reactant which is used in a chemical reaction. Excess reactant, the reactant which left unreacted or unused after completion of reaction is called the excess reactant. It is actually added to ensure that the other reactant is completely used up and it is cheaper and easier to recycle. Students, if we are performing any chemical reaction and we have the two reactant in which one will be limiting reactant. Limiting reactant is actually that reactant which is not easily available, which can be expensive. That's why we are using a stoichiometric amount of the limiting reactant. Okay. Now here is example. Observe the example, students. Here two boxes. One box representing the before reaction and second box representing the after reaction. Before reaction we have the 10 molecules of oxygen, 10 molecule of hydrogen and 7 molecules of oxygen. Okay, and students you just observe, तो हमारे पास student यहाँ पर जो white balls हैं it representing actually the hydrogen molecule, okay, and red balls representing the oxygen molecule. After the reaction, students, we have the 10 water molecule and 2 molecules of oxygen. As hydrogen when react with the oxygen, then we obtain the water molecule. और आप देख सकते हैं students, हमारे पास जो water molecule है उसको कुछ इस तरह से represent किया जा रहा है. And here we have the 2 molecules. Let me write again. Here we have the 2 molecules of oxygen which is left unreacted. So we can say that in this reaction oxygen is actually the excess reactant and hydrogen which is completely used up and to produce the product is known as the limiting reactant. Now let's understand it by the explanation. Generally, exact stoichiometric amount of reactant are not used in a chemical reaction. Usually 1 or 2 reactant may be used in excess. In such cases, the product obtained is entirely depend upon the reactant which is completely consumed in the reaction, which is called the limiting reactant. For example, sulfur dioxide का अगर हम reaction करवा रहे हैं oxygen के साथ and we obtain the sulfur trioxide. In this example, sulfur dioxide is a limiting reactant and oxygen which is easily available in air, which is easily to approach, which is easily available, known as the excess reactant. Identification of a limiting reactant. Steps to identify limiting reactant. जब हम numerical students perform करेंगे, numericals करेंगे, तो उसके लिए जो steps आपने apply करने हैं वो ये हैं. First step, we required a balanced chemical equation. Then convert the quantities from grams into moles. Calculate the number of moles of product with respect to the reactant. हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट होंगे हम उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिफाई एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट होंगे हमने उसके थ्रू प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, चाहे 3 होंगे तो 3 के थ्रू आपको कैलकुलेट करने हैं. डिटरमिन विच रिएक्टेंट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ऑब्वियसली दैट विल बी द limiting reactant, and in the last we will calculate the mass of the product. Okay students, determine, and after that we will determine the excess reactant. Now come to the example. We have the 10 moles of hydrogen and 7 moles of oxygen were reacted to produce the water molecule. Which of the reactant is the limiting reactant? Solution: when we react the hydrogen with the oxygen, then we obtain the water molecule. अगर हम इसको इस तरह से कहें students, when 2 moles of hydrogen react with the 1 mole of oxygen, then it produces the 2 moles of water molecules. Okay,
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे मोल्स ही गिवन है इसलिए हमें मोल्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम नाउ वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय रिस्पेक्ट टू द ईच रिएक्टेंट। पहले हम एक हाइड्रोजन के थ्रू भी मालूम करेंगे मोल्स ऑफ द वाटर और फिर ऑक्सीजन के थ्रू हम मालूम करेंगे मोल्स ऑफ द वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के थ्रू, ओके, we will calculate the moles of water by the hydrogen. So according to the equation, 2 molecules, 2 moles of hydrogen give the 2 moles of the water molecule. We can write like this. So according to the question, 10 moles of hydrogen, अगर हमारे पास according to the equation 2 moles hydrogen दे रहा है 2 moles of water, तो 10 moles of hydrogen कितना देगा, apply the mole ratio, 2 multiplied by 10 divided by 2, then we will have the 10 moles of water molecules through hydrogen molecule. Okay, now come to the step 2. अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। कैसे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी हैव द 1 mole of oxygen is equal to the 2 moles of water molecule. So 7 moles which is given in the क्वेश्चन, 7 moles of oxygen कितने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, that is the 14 moles of water. So according to the definition of reactant, limiting reactant, the reactant which gives the least number of moles of product. Now अब ऑब्जर्व करके बता सकते हैं which gives the least number of moles of product, obviously hydrogen. So hydrogen is the limiting reactant. You got it student? Now come to the sample problem 1.7. Magnesium metal react with the sulfur to produce the magnesium sulfide. Okay, magnesium react कर रहा है sulfur के साथ to produce the magnesium sulfide. Now how many grams of the magnesium sulfide can be made from the 1.50 magnesium and 1.50 sulfur by the reaction? Come to the solution. जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मास गिवन है दोनों रिएक्टेंट का, आप दोनों के रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेंगे इनटू द मोल्स। मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से। सो 1.50 को हम डिवाइड करेंगे मैग्नीशियम के एटॉमिक मास से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके, देन वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सल्फर। किस तरह से करेंगे, बाय 1.50 को हम डिवाइड करेंगे 32 से। व्हाट इज 32, दैट इज एक्चुअली द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सो वी विल ऑब्टेन द 0.0467 मोल्स ऑफ द सल्फर। हमने क्या किया, मास को कन्वर्ट कर दिया मोल्स के अंदर। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अब हम 1 by 1 सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम के थ्रू कैलकुलेट करेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स, फिर हम करेंगे सल्फर के थ्रू मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स। ओके, इन फर्स्ट स्टेप 1 mole of magnesium gives the 1 mole of magnesium sulfide. So applying the mole ratio 0.0625 moles. 0.0625 moles of magnesium will give the 0.0625 moles of magnesium sulfide. Okay, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट 1:1 का रेशो है, इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हुए हैं मैग्नीशियम के वही मैग्नीशियम सल्फाइड के होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन नेक्स्ट स्टेप, स्टूडेंट्स बताइए आप। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैलकुलेट करेंगे सल्फर के थ्रू मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स। कैसे करेंगे, नाउ वी विल से दैट, करेक्शन कर दें, आपकी बुक में भी थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है इसकी। 1 mole ऑफ सल्फर गिव्स द 1 mole ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। सो इसको करेक्शन कर दें, यहाँ पर आएगा 0.0467। सो 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फर विल गिव, कितना होगा हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड, ऑब्वियसली सेम होगा बिकॉज वी हैव द 1:1 रेशियो। अब देख लें आपके पास दोनों में लिमिटिंग हमारे पास कौन सा आ रहा है, अब आप देख लें हमारे पास दोनों में लिमिटिंग कौन सा आ रहा है, दैट इज़ द 0.0625, दैट इज़ द 0.0467। सो अकॉर्डिंग टू द definition, the reactant which gives the least number of moles of product is known as the limiting reactant. So here the sulfur gives the least number of moles of product, so it will be known as limiting reactant.
You got it, student? Now we calculate the mass of magnesium sulfide in grams. In question आपको क्या बोला गया है? You have to calculate the in question you have to calculate the how many grams of the magnesium sulfide. How many grams mean you have to calculate the mass. Okay, so now we can calculate the mass of magnesium sulfide. उसके लिए आपको क्या required है? सबसे पहले आपको चाहिए molecular mass. मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया 24 हमारे पास है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, सल्फ़र का एटॉमिक मास है हमारे पास 32, तो हमारे पास आ जाएगा 56 मास एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मैग्नीशियम सल्फाइड. ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या होता है मास कैलकुलेट करने का, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. तो ये हमारे पास मोल्स जो आ गए थे, कौन से वाले मोल्स, ये दिस वन जो कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट से आए थे. तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर लिया मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास मास आ गया दैट इज़ द 2.6152 ग्राम. गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने सिर्फ ये कैलकुलेट किया कि विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और सेकंड जो हमारे पास था ऑब्वियसली हमने ये बता दिया कि दैट इज़ द एक्सिस रिएक्टेंट. जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था, सल्फ़र, तो ऑब्वियसली हमारे पास दूसरा था मैग्नीशियम. लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कैलकुलेट किया कि हमारे पास अनरिएक्टेड अमाउंट जो मैग्नीशियम का है वो क्या है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इन नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही करेंगे. नाउ सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.5. 200 ग्राम ऑफ द पोटेशियम dichromate K2Cr2O7, that is the potassium dichromate, was reacted with the 200 gram of the concentrated sulfuric acid. Calculate the mass of atomic oxygen produced and mass of reactant left unreacted. ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट के मास भी मालूम करने हैं और इसके अलावा वो रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में था उसके भी मास मालूम करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल what we will do, first of all we will calculate the moles of the potassium chromate, and second we will calculate the moles of the sulfuric acid as we have the two reactant. ठीक है, हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक एटॉमिक ऑक्सीजन है और दूसरा हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स होंगे, बट वी आर जस्ट कंसर्न विद द एटॉमिक ऑक्सीजन. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे. मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, एज इट इज़ आयनिक कंपाउंड, इसलिए हम लोगों ने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया फार्मूला मास का. नाउ हमारे पास जो मास है दैट इज़ द 200 को डिवाइड कर दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के फार्मूला मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया दैट इज़ 0.68 मोल्स. ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सेम हमने यही किया. हमने एज वी नो दैट फार्मूला मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 98 ग्राम. सो हमने क्या किया, मास को डिवाइड कर लिया इसके मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज़ 2.04 हमारे पास आ गया. तो एक मोल्स हमारे लेट मी राइट अगेन, एक हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए पोटेशियम डाइक्रोमेट के, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के. बोथ आर द रिएक्टेंट्स. ठीक है, दोनों के हमने मोल्स कैलकुलेट कर दिए फ्रॉम देयर masses. Okay, now we have the equation. When potassium dichromate react with the sulfuric acid, then we obtain the potassium sulfate, chromium sulfate, water molecule and atomic oxygen. ठीक है, एंड हमें कंसर्न किससे है, ये दो रिएक्टेंट हैं, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स और यू कैन से दैट मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम. हमें इससे कंसर्न है, हमें बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन. पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक सल्फ्यूरिक एसिड से और फिर हम कैलकुलेट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट से. दोनों रिएक्टेंट से हम 1 बाय 1 ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और जिसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाउ कम टू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स द 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. कैसे पता चला आपको, दैट इज़ फ्रॉम द इक्वेशन. यहाँ पे हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट इज़ 1. यहाँ हमारे पास 3 कोफिशिएंट है, so that is the 3 moles. So according to the equation 1 mole of potassium dichromate gives the 3 moles of oxygen. So
0.68 मोल्स जो आपने कैलकुलेट किया था, 0.68 मोल्स ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट विल गिव, अप्लाइंग द मोल रेशो, जब आप मोल रेशो अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ कम टू द सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 4 moles, you may see in the equation 4 moles of sulfuric acid gives the 3 moles of oxygen. So 2.04 moles जो आपने कैलकुलेट किए थे, 2.04 moles of sulfuric acid will give, applying the mole ratio, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.53। और अगर आप ज़रा ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, दैट इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन फैक्टर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन फैक्टर। और ये जो हमारे पास 2.04 है दैट इज़ एक्चुअली द गिवन क्वांटिटी। ओके, एनीवेज नाउ कम टू द टॉपिक। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मोल रेशो। तो आपने क्या किया, आपने पहले पोटेशियम क्रोमेट से ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, देन यू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के मोल्स आ गए। अब आप देख सकते हैं कि विच वन इज़ द लीस्ट वन, ऑब्वियसली sulfuric acid. So as sulfuric acid is producing the small amount, so sulfuric acid is the limiting reactant and produce the 1.53 gram, 1.53 moles, that is not gram, that is 1.53 moles. Okay, now calculate the atomic mass. कैसे कैलकुलेट करेंगे मास, हम 1.53 को मल्टीप्लाई कर लें 16 से। व्हाट इज 16, दैट इज एक्चुअली द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 1.53 मल्टीप्लाई किया 16 से तो हमारे पास आ गया एटॉमिक ऑक्सीजन का मास, दैट इज़ द 24.4 ग्राम। यू गॉट इट स्टूडेंट। नाउ आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मालूम करनी थी। एक, आपको कैलकुलेट करना था मास ऑफ द एटॉमिक ऑक्सीजन, एज सेकेंड आपसे कहा गया था कैलकुलेट करें कि आपके पास जो एक्सेस रिएक्टेंट हैं उसके आपने मास कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट विच आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। नाउ in this problem sulfuric acid is the limiting reactant and potassium dichromate is the reactant in the axis. We have the 0.68 moles of the, जो आपने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट, 0.68 moles of the potassium dichromate and 2.04 moles of the sulfuric acid. Now according to the equation we have the when 4 moles of sulfuric acid react with 1 mole of potassium dichromate. You may see student in the equation, हमारे पास इक्वेशन में आप रेशो देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल्स रिएक्ट करते हैं विद द 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट दैट 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आपने क्या किया 2.04 मोल्स। अब ये 2.04 आपके पास कहाँ से आया है, जस्ट सी हियर, दैट इज़ द 2.04, ठीक है, जो कि आपने कैलकुलेट किया था ऑक्सीजन के एटम्स को, तो इतने तो रिएक्ट कर लिया था। ओके, नाउ 2.04 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना करेगा, तो अब आपने क्या किया, इसको 4 को मल्टीप्लाई किया, 2.04 को मल्टीप्लाई किया 1 से एंड 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया है 0.51 मोल्स ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट कि आपने 2.04 मोल से क्यों आपने इसको किया, रेशो अप्लाई किया, वो इसलिए कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्ट करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.51 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वो हैं जो कि यूज्ड अप हो गए हैं। ठीक है, और हमारे पास जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.68, 0.51 जो है हमारे पास वो यूज्ड अप हो गए हैं। ठीक है, किस चीज़ में यूज्ड अप हो गए हैं, प्रोडक्शन में, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में, और बाकी तमाम जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में यूज्ड अप हो गए हैं। तो 0.68 जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, 0.51 जो कि हमने यूज्ड कर लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कैसे आएगा, 0.68 से माइनस करेंगे 0.51 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.17 मोल्स। ओके, ये हमारे पास मोल्स आ गए। एज वी हैव टू कैलकुलेट द
मास ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी जो आपको गिवन हो, क्योंकि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है इसलिए हम यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मूला मास का। सो 0.17 विल मल्टीप्लाई बाय द 294, तो हमारे पास मास लेफ्ट अनरिएक्टेड जो आ जाएगा वो होगा 49.98 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। तो हमारे पास यहाँ दो चीज़ें कैलकुलेट करने को हमें कहा गया था। एक हमसे कहा गया था कि जो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन हमें वो कैलकुलेट करना था, एंड सेकेंडली फिर हमें कहा गया था कि वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट विच आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट का वो मास जो कि प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने के बाद जो रह गया था वो कैलकुलेट करना था। ओके, तो हमने ये दोनों कैलकुलेट कर दिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। ये सारे आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ही के न्यूमेरिकल्स हैं। किस तरह से आपको करना है, फर्स्ट इज द अल्मोनियम रिएक्ट विद द ब्रोमीन टू फॉर्म अल्मोनियम ब्रोमाइड एज शोन इन द इक्वेशन। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले बताना है और फिर उसके बाद आपको सिंपली अल्मोनियम ब्रोमाइड का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिर्फ आपको सिंपल एक लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, उसके बाद जो लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा, मालूम हो जाएगा, तो फिर आपने उसके बाद एंड में मास कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, देखें क्या डिफरेंसेस क्या हैं इसके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सपोज वी हैव 1.87 moles of the ammonium chloride react with the 1.35 moles of the calcium hydroxide. How many grams of the calcium hydroxide are left unreacted? आपको थोड़ा सा यहाँ काम इजी कर दिया गया है। आपको यहाँ पे मास नहीं गिवन है, आपको मोल्स गिवन है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, मोल्स से आपने कैलकुलेट करना है, पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर एक्सेस रिएक्टेंट मालूम करना है, और फिर उसके बाद आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो आपको यहीं पे क्लू दे दिया गया है कि हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है दैट इज़ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके जो मास रह जाएगा अनरिएक्टेड वो आपको मालूम करना है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है, दैट इज़ द हाउ मच silver chloride AgCl will be formed by mixing 120 gram of the silver nitrate with a solution of the 52 gram of NaCl। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम रिएक्शन में क्या कर रहे हैं कि AgCl का रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर्म बाय AgCl हमारे पास प्रोड्यूस होगा किस किस के रिएक्शन से, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे NaCl के साथ। ये इक्वेशन आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखी भी होगी, अगर नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवा रहे हैं NaCl के साथ, तो हमारे पास एक बन जाएगा AgCl एंड सेकेंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं और इक्वेशन लिख के फिर आपने कैलकुलेट करने हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द सेल्फ चेक 1.4 क्वेश्चन 1, एंड आई थिंक दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेल्फ चेक 1.4। क्वेश्चन 2 ये क्वेश्चन 2 है, आपको क्वेश्चन 1 जो है वो भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कहीं पे जहाँ कन्फ्यूजन आपको फील हो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।